नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NARKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रदीप जी सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, शलोम, सत श्री अकाल, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। Please go ahead, sir. Awaryako, Jambo, Awaryako. I hope the pronunciation because this is 1999 में गए थे सर। So it's the classic pronunciation. Yes, it's the classic pronunciation. Absolutely. So everybody should learn from you. Yes. Exactly. So all those people in South Africa who have now changed their pronunciation should go to Pradeep ji's pronunciation. Exactly. Let's be very clear. We have been getting some nasty mails from East Africa. Saying that we are not speaking properly? Yeah, murdering the Swahili language. Are we? Are we? I didn't know we were so talented. Isn't that lovely? In any event, what's happening with the Congress? Why aren't they announcing their candidate from Amethi and from Raebareli? यार कल nomination file करना है यार। हो क्या रहा है प्रदीप जी? क्या पता इतना डर गए कांग्रेस वाले? I personally feel that Rahul Gandhi should not contest for Amethi. जी. Because he has made Kerala his base, and the people of Kerala accepted him. When he fought for Wayanad, it was the first time that a clean sweep of Kerala took place, and Congress scored the maximum in Kerala. Congress and allies 19. Yes, sir, out 19 of out of 20. And after doing such a good job there, now even if you give an indication to the people of Kerala that you want to leave Kerala and go back to Amethi, then you are, what they call betrayal of the entire love they have, thrown on you. So in effect, Mr. Rahul Gandhi is between a rock and a hard place. But कहने का मतलब ये हुआ। Sir, he has proved himself in Kerala. Kerala में he has proved himself where he has shown that he stood there and Kerala was swept by Congress. There was Congress का लहर था केरल में, and out of 52 or 53, if 19 allies, 15 केरला में directly score कर लिया, it's a great feat on itself. 15 out of 20. Yes, sir, yes, yes, sir. Isn't that amazing? And then Isn't that after amazing? that आप फिर छोड़ के जाओगे और नया बेस बनाने। I mean, मोदी जी ने लेकिन वाराणसी को अपना बेस जी- बना दिया and he's fighting for वाराणसी। लेकिन प्रदीप जी प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस स्मृति ईरानी जी का जवाब कैसे देगी? अमित शाह जी और मोदी जी का जवाब कैसे देगी? वो तो टॉन्ट कर रहे हैं उनको हर रोज, देखो छोड़ के भाग गए, अमेठी से डर के भाग गए। पुश्तैनी सीट थी इनकी। कभी ना कभी जो गांधी परिवार है उसने अपनी शुरुआत जो है वो हमेशा उन्होंने कहाँ से शुरू करी है? अमेठी से। अब अमेठी से जिसने भी शुरू करी है, सीधी सादी बात है, आप उस अमेठी को छोड़ करके जा रहे हैं जहाँ से संजय गांधी जी खड़े हुए, राजीव गांधी जी खड़े हुए, सोनिया जी भी खड़ी हुई वहाँ से। मतलब I mean, if you बड़ा see, अजीब है मसला। he's a national leader. अब national leader का पूरा देश अपना होता जी। है। तो once एक base वहाँ बन गया है, and people have accepted you. I mean, it is not that people of Kerala has even for a minute, even after the lavishes they have praised on you, heaped on you, and the love, the affection they have given you, आप वहाँ से छोड़ के दूसरे constituency को ऑफ पिक करना, that's wrong. I mean, unless you are scared that you're going to lose from Wayanad, which I don't think is I don't think that's possible. It's not possible at all. जी। Kerala has संजय got ठाकुर strong. साहब, Yes, yes. संजय ठाकुर साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त तो बड़े खुश होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। मतलब आई वेरी पर्सनली आई डोंट बिलीव ऑल द यूट्यूबर्स। क्या है कि यूट्यूब का एक अलग ही यूनिवर्स है, दे लिव इन एन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स, जो हर एक कोई बोल रहा है सख्ते में आ गई बीजेपी की हालत खराब, ये वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद संजय ठाकुर जी मुझे समझाएंगे। संजय ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे क्या कुर्ता पहना हुआ है, सब गुरु महाराज का कुर्ता पहना, बृहस्पति का कुर्ता पहना हुआ, देखो आज पीले रंग का है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। तो संजय ठाकुर साहब, ये यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बीजेपी सख्ते में, मोदी जी डर गए, ये हो गया वो हो गया। ये कौन से यूनिवर्स में रहते हैं सर? ये कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं लोग? ये मेरी समझ के बाहर है। अरे जो हमें जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है यार, बीजेपी तो आ रही है वापस बड़े आराम से। मतलब 335 सीट तो कहीं नहीं गई बीजेपी की, जो अभी तक गिनती हो रही है उसके हिसाब से। तो सर आवाज नहीं आ रही। देखिए ऐसा है ना बजाज साहब जी, कि मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि दुनिया भर की बहुत सारी ताकतें जो हिंदुस्तान की बढ़ती
जो शक्ति है और बढ़ता आकार है हिंदुस्तान का, आर्थिक आकार जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से बहुत सारी शक्तियां और देश के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन लोगों को किसी ने पूछा नहीं, वो सारे लोगों ने आजकल यूट्यूब चैनल बना के, उनका एक ही काम है नरेंद्र मोदी जी को कितना गाली दे सकते हैं। और जिस देश में चुनाव हराने के लिए $1 बिलियन खर्च करके जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जब कैंपेन करते हैं, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से, विरोधी पक्ष के माध्यम से, अपोजिशन के माध्यम से इन लोगों को कुछ खाद पानी मिल रहा होगा। और जिस तरह से, जिसके दम पे ये लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि यूट्यूब आज मेन स्ट्रीम मीडिया से भी बड़ा मीडिया बन चुका है और हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन में 10 रुपए का भी डेटा है, वो यूट्यूब देख रहा है। इसी स्ट्रेटेजी के तहत विपक्षी पार्टियों ने, विरोधियों ने एक नया कैंपेन शुरू करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो 400 पार का नारा है इसको किसी तरह से रोका जा सके। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोल रही है कि ये लोग 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये लोग इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों ने बार बार संविधान बदलने का प्रयास किया हो, 104 बार 42nd अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट लाए हो, 104 बार, लोगों ने बाबा 104 बार 104 बार, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। यस, वो लोग आज इस देश में नारा दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने के बाद देश में तो छोड़िए, विदेश में लंदन में भी जो बाबा साहब का घर था, जिस घर में बाबा साहब रहते थे, उस घर को महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, उसको जाके खरीद कर वहां पे ग्रंथालय और उनका बाबा साहब की स्मृति जीवंत रहे पूरी दुनिया में, वो बनाने का प्रयास, जिस सरकार ने हिंदू मिल जैसी इतनी बड़ी जमीन को देकर वहां पे एक स्मारक बनाने की कोशिश, जिस तरह से चैत्य भूमि का विकास, और बाबा साहब के विचारों में जिन लोगों की सच में आस्था है, जो लोग बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं और उनके विचारों को लेकर देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? उन लोगों द्वारा जिन लोगों ने 104 बार संविधान को बदलने का प्रयास किया और जिस चीज का विरोध किया बाबा साहब ने। अब ये लोग देखिए एक नया टैक्स लगा देना चाहते हैं, विरासत टैक्स। ये किससे प्रेरित होकर ये लोग काम कर रहे हैं? ठाकुर साहब, आज उसी विषय में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज ही, बोले कि यू आर मिस इंटरप्रेटिंग द कांग्रेस मैनिफेस्टो। हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास एक्सरे मशीन है और वो स्त्रीधन को लेके जाएंगे, वो मंगलसूत्र को उठा लेके आएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स 55% आपको भरना पड़ेगा। वो उन्होंने डिटेल में मैनिफेस्टो को समझा दिया। युवा का हक, पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी योजना, 1 लाख रुपया हर महिला को मिलेंगे जो गरीब से गरीब महिला है, 1 लाख। तो अलग अलग स्कीम उन्होंने बोला। ये उन्होंने कहा नहीं कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स होगा। उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन कांग्रेस का मंगलसूत्र को छीनेगा, एक्सरे स्त्रीधन को छीनेगा। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ खारिज कर दिया। ठाकुर साहब, लेटर टू मोदी, लेटर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए नामियार साहब, मरता क्या ना करता, एक कहावत है, मरता क्या ना करता। अरे आप उस खड़गे साहब की बात करते हैं जो खड़गे साहब कहते हैं कि राम से लड़ लेंगे, हमारे पास शिव है। आप देखिए जरा कि खुद सनातन को ना मानने वाले अब इस तरह के स्टेटमेंट कर रहे हैं ताकि देश जातियों में और धार्मिक आधार पर भी विभाजित हो जाए पूरी तरह से, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जबकि ये खुद हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की यही पुरानी नीति, फूट डालो, राज करो। इन्होंने जातीय व्यवस्था को इस तरह से, इतनी प्रबलता से इसलिए चलाया, सोशल इंजीनियरिंग कर करके इन्होंने हमेशा जातियों को विभाजित करके वोट लेकर राजनीति करने वाले लोग जब गलत बोल के फंस जाते हैं तो फिर उसका इसी तरह का इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। लेकिन सर वो ये क्यों नहीं बताते? सर ये आरोप तो आप पर लगाते हैं। ये आरोप तो आप पर लगाते हैं साहब कि जो खुद चोरी करते हैं जी, और वही हमको चोर बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, ये आपसे
चलिए ठीक है सर, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता बाबा हूँ, साहब का विरोध ये करें और आरोप हम पे लगाएं। लेकिन संजय ठाकुर ये कहां तक साहब, उचित है वजह साहब? संजय ठाकुर साहब, छोटी सी बात है। अभी क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल रहे हैं, 10 वर्ष जो रहे हैं, आप 10 वर्ष भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 साल की अगर बात करें, क्योंकि 2014 से 2019 का जो 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 भी लेखा जोखा था वो तो 2019 में हो गया। 303 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी को देश ने वापस भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2019 से लेकर के आपका जो लेखा जोखा है वो माशाल्लाह बहुत इंप्रेसिव है, इसमें दो राय नहीं है। मैं खुद, ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, तो इसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में या कांग्रेस के बारे में या हिंदू मुसलमान के बारे में आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है सर। आपने आर्टिकल 370 विड्रॉ किया है सर, आर्टिकल 370 रिपील किया है आपने। यू हैव रिपील्ड आर्टिकल 370 सर। राम मंदिर बना है, आपने वर्बल ट्रिपल तलाक जो है, जिसकी वजह से मुसलमान महिलाएं इतनी पीड़ित थीं, उसको आपने क्रिमिनलाइज किया है सर। इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये सब करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये जरा समझाया जाए मुझको संजय ठाकुर साहब। असल में ऐसा है बजाज साहब कि ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो देश और देश की जनता भली प्रकार जानती है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि अगर कांग्रेस की जो संगठन है, कांग्रेस जो पार्टी है, ये जब इस तरह का कोई मैनिफेस्टो लेके आए, जिस तरह से ये बाट बंदर बाट की बात कर रहे हैं, ये चीजें संभव है क्या? लेकिन आज इनको अपनी डूबती हुई नैया को, कश्ती को किसी भी कीमत पे बचाना है, इसलिए ये कितना भी बड़ा झूठ बोलकर और बार बार ये झूठ बोलते जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करके एक बार सत्ता हथिया पाए। क्योंकि इन्होंने जो इतनी लूट की थी, यहां वहां जहां तहां ठिकाने लगाए, इनके रास्ते सारे बंद किए गए, न इनसे उगलता जा रहा है न इनसे निगलता जा रहा है। कोई एक मौका चाहिए इनको अपनी चीजों को ठिकाने पे लगाने के लिए और फिर से भारत देश को पूरी तरह से लूटने के लिए। आप बताइए कि अगर ये अपनी मैनिफेस्टो में अपीजमेंट की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उस अपीजमेंट का जवाब तो देना पड़ेगा ना बजाज साहब। लेकिन ये वैसा ही है कि ये कितनी भी कम्युनल बातें करें, लेकिन हम जब इनकी बातों को कटाक्ष करके उसको काउंटर करने जाएं, तो ये हम पे कम्युनल होने का आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी कॉन्फिडेंट है, ठाकुर साहब, राहुल गांधी कॉन्फिडेंट है कि आपका 303 सीट में से 150 सीट राहुल गांधी खींच लेगा। आज उन्होंने तुलेआम तो ऐलान कर दिया कि बीजेपी का 303 में से 150 राहुल गांधी छीन लेगा। और जो न्याय की बात करें, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी वो एनफोर्स करेंगे, जिसमें नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय को इस देश को वो समर्पित करेगा। तो क्या ये राहुल गांधी जी का क्लेम कि 150 सीट आपका छीन लेगा, कितना सच्चाई है ठाकुर साहब इसमें? ये तो बिल्कुल बोगस बात है। जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो क्या करेगा बताइए आप मुझे। पूरे देश में लड़ कितनी सीट पे रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी को पता है क्या? मेरा दावा है, अभी आप पूछ लीजिए कि कांग्रेस का हाथ का सिंबल पूरे देश में कितनी सीटों पे लड़ रहा है, तो राहुल गांधी नहीं बता पाएंगे आपको। ये ऐसे ही उलझुल बातें किया करते हैं, लिखी पढ़ी बातों को पढ़ देते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये आखिरी मौका है, जब वो एक चांस ले रहे हैं, कुछ भी बोल के निकलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर अब की बार भी इतने सारे झूठ बोल के भी हम अपने को ना बचा पाए, तो आज बेल पे घूम रहे हैं, न जाने कब जेल जाना पड़ जाए, और जेल न जाए तो कब हमको देश छोड़ के भागना पड़ जाए। अगर इन स्थितियों से बचना है, तो जो इस पूरी भारत देश को अपनी रियासत समझते थे, आज उस देश की जनता जब इनके बुरी तरह से इनका तिरस्कार कर रही है, तो ये किसी भी तरह से उल जलूल बातें करके, हर तरह का प्रलोभन देके इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गुमराह करने वाली बात है, जो कभी सच नहीं होने वाली। कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने जो नई स्कीम्स अनाउंस करी हैं अपने मैनिफेस्टो में, जैसे महिलाओं के लिए एक वजीफा जो है, वजीफा ही कहेंगे उसको, और महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना जो भी है, एक साल में 1 लाख रुपए, और उसके अलावा जो पहली नौकरी पक्की गारंटी है, राहुल गांधी की पहली नौकरी पक्की है आपकी, आपको क्या देंगे, अप्रेंटिसशिप
अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपके पास डिप्लोमा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो उन्होंने कहा है सर। और उनको ये लगता है कि इसकी वजह से बहुत लोग उनकी तरफ खिंचे आएंगे, स्पेशली जो युवा हैं। संजय ठाकुर साहब, देखिए बजाज साहब, ये जो बातें कर रहे हैं इस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर चुकी है। माता के गर्भ में जो बच्ची है उसका भी भविष्य सुनिश्चित करने की स्कीम ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी चला चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी इंप्लीमेंटेड है, ये देश में भी इंप्लीमेंटेड है। और तो जाने दीजिए, बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे के माता के गर्भ में स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए माता को आहार ठीक से मिल सके, उस दरमियान उसको आराम मिल सके, इसलिए उनको छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। उनको आहार ठीक से मिल पड़े, पोषण मिल सके, इसलिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चला रही है। इन कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं है, ये खाली बड़ी बड़ी बात करके एक प्रलोभन देके जो एक सेक्शन है उसको गुमराह करके, आरक्षण की बात करके, जातियों में विभाजन पैदा करके, डिवीजन पैदा करके, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम करने का प्रयास भर कर रहे थे। ये तो खुद 40-45 सीट के ऊपर जा नहीं रही, क्या बात करेंगे संजय ठाकुर साहब? यहाँ पर लेकिन एक चीज है, एक बड़ा गंभीर सवाल है, जरा गंभीर सवाल है ये, कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कोई 25 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस की बात की थी। आज की तारीख में आप जो इंश्योरेंस दे रहे हैं वो सिर्फ 5 लाख रुपए की है। और वही इंश्योरेंस स्कीम जो है, प्रधानमंत्री की जो योजना है यहाँ पे मुंबई में भी, वहाँ पर भी लोगों को असल में, और ये हमारे पास केसेस आए हैं, असल में समस्याएं आ रही हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि साहब हमें तो पैसे दीजिए, हमें मालूम नहीं है, आप बाद में इंश्योरेंस में क्लेम कर लेना। नाउ दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम सर, इवन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर लोगों को पहले पैसे मांगे जा रहे हैं कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा, मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा। यू रियली हैव टू लुक एट दिस। आपको इसकी तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि लोगों की बहुत समस्या है। संजय ठाकुर साहब, नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं जी, ये बात हम लोगों के भी संज्ञान में आई जी, हम लोगों तक भी ये बातें पहुंची हैं। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस विषय में भारत सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, ये सब लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये चीजें सुनिश्चित की जाएंगी कि इस तरह की मनमानी कोई ना कर सके। और अब तो उस स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इस स्कीम को हमारे जो मोस्ट सीनियर सिटीजन है उसमें किसी भी जाति और धर्म के ऊपर हर आदमी के लिए ये काम करना बाध्यता होगी। और ये जो गहलोत साहब ने किया था, ये जो कह रहे हैं, ये लोग स्कीम बनाते हैं। बजाज साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये लोग सरकारों में रहते हैं तो सोना बेच देते हैं, ये लोग रहते हैं तो पेट्रोल कम दाम पे देके पेट्रोल के बिल भरते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो इनके बकाये बिल भरती है। ये इसी तरह के झूठे वादे कर देते हैं। और हमने जितना फॉरेन रिजर्व जमा किया हुआ है, जितनी बड़ी इस समय आर्थिक स्थिति दिख रही है, देश के लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि अगर कांग्रेस इस तरह का आए तो आज इतना नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इतनी सुदृढ़ स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति है, स्थिति इतनी सुदृढ़ हुई है कि कांग्रेस चाहे तो ये चीजें कर सकती है। इसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अब चुनाव भर के दिनों में लगातार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं उसकी साइज और उसका क्वांटम क्यों नहीं बताते? खाली मुंह से कह देने से क्या होगा? और दूसरी चीज यहाँ पर यह आती है सर, वो नहीं बताएंगे। वो कहां से बताएंगे सर? हिसाब किया ही नहीं किसी ने, कहां से बताएंगे? तो सीधी सादी बात है ना, तो सर वो तो समझने वाली बात है ना। आप कहां से देंगे? आप 1 लाख रुपए हर महिला को कहां से देंगे हिंदुस्तान में? कहां से पैसे आएंगे? 1,43,000 करोड़ का बिल आएगा, 1,43,000 करोड़। सर कहां से आएगा? वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? इतना बजट ही नहीं है हमारा, एनुअल बजट नहीं होता सर हिंदुस्तान का इतना। वो छोड़िए ना, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, और उसका श्रेय आपको जाता है, वेरी फ्रैंकली आपको, यानी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को। पहली बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो 1,30,00,000 बार डाउनलोड हुआ है, ऑल थैंक्स टू यू, आपकी वजह से। क्योंकि आप लोगों ने इतनी बात करी है, पहले तो कोई पढ़ता ही नहीं था। आप लोगों ने
कांग्रेस मैनिफेस्टो को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोगों ने उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो सर ये क्या जरूरत पड़ गई इतना बात करने की? मैं तो ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस ये कहती है अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करो ना यार, हमारे मैनिफेस्टो के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हो? बोलिए सर। नहीं, बजाज साहब ये बात आप समझें, ये जो काम किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जिन लोगों ने डाउनलोड किया इन्होंने रद्दी की टोकरी में नहीं डाला इसको जी। प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने जो कन्विक्शन के साथ इस मैनिफेस्टो को उजागर किया है, देश की जनता ने इसको डाउनलोड करके खुद पढ़ के समझ लिया है कि इसमें हम कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं। झूठ अगर कोई बोल रहा है तो ये राहुल गांधी एंड कंपनी बोल रही है और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। डाउनलोड कर लेने से ये कोई सुखद बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि डाउनलोड करके जितने लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीजों को, उतने लोगों को तो इन लोगों से इतनी घृणा हो जाएगी कि मैंने कहा ना कि इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। वजह ये लव जिहाद तो हम लोग सुने थे, ये वोट जिहाद नया चीज आ गया, वोट जिहाद। और आपने सलमान खुर्शीद के जो भांजी है उस पर आपने एफआईआर भी रजिस्टर किया। क्या ये वोट जिहाद जो कि कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, ये जिहाद है, ये वोट है, आपको वोट बीजेपी के खिलाफ, क्या ये सचमुच है? आपने एफआईआर तो किया है, वरना उनका पानी बंद समाजवादी। तो किस प्रकार से आप देखते हो, क्या मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ेगा ये कॉल के बाद, जो वोट जिहाद का कॉल है? इसके बाद मुस्लिम वोट 20% कहीं 14 से 20% है पूरे देश में, तो क्या ये वन साइडेड पड़ने वाले आपके खिलाफ? हाउ डू यू सी दैट ठाकुर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी मुस्लिम बहनें नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से नरेंद्र मोदी जी को अपने भाई मानकर, अपना बेटा मानकर माताएं बहनें नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रही हैं। रही बात वोट जिहाद की, तो ये सच्चाई है कि कांग्रेस लगातार इस तरह का प्रयास करती है कि ये समाज, ये देश पूरी तरह से छिन्न भिन्न बिखर जाए। आप बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि हम राम से लड़ लेंगे। तुम्हारी हैसियत है राम से लड़ लेने की? जो नकली जनेऊ पहन के घूमते हो कोर्ट पे, तुम लड़ लोगे राम से? लेकिन ये जो अहंकार, ये जो इन लोगों के बीच में कौरवों की मानसिकता वाले लोग बैठे हैं, जो इनको पढ़ा रहे हैं, वही लोग इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इनकी बुद्धि जिस तरह से चल रही है, ये सारे नैरेटिव फेल हो जाएंगे। और आप देखेंगे 4 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा लेके आप लोगों के सामने बैठेगी, उस दिन मैं विश्लेषण करके बताऊंगा आपको कि कहां से ये 400 पार आया है और कैसे आया। 400 पार सिर्फ बीजेपी के लिए कि 400 पार एनडीए के लिए? 400 पार हमारे पूरे गठबंधन का है। वजह से हमने लगातार मोदी जी ने कहा आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी 370 के आंकड़े को छू लेगी। मुस्लिम अपीसमेंट के आप आरोप लगा रहे हो राहुल गांधी और कांग्रेस पर, आप आरोप लगा रहे हो। मगर ठाकुर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे का लेटर में जो प्रधानमंत्री को आज लिखा है, उसने कहा अपीसमेंट है, मगर आपका है चाइनीज अपीसमेंट। चाइनीज अपीसमेंट आप लगातार कर रहे हो। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तरांचल में कंटिन्यूस घुसपैठी आ गया, चाइनीज इन्वेजन, चाइनीज इस प्रकार से एनक्रोच कर दिया है। और आपने एक्सपोर्ट वहां से चाइनीज का इंपोर्ट 55% बढ़ गया पूरे 5 साल में। आंकड़े देते हुए आप पर चार्ज है कि चाइनीज अपीसमेंट चालू है। देश में इनकर्शन हुआ 3 जगह पर, उसके बावजूद चाइना के साथ आप इंपोर्ट इतने 23.24 बिलियन डॉलर्स, 101 बिलियन डॉलर्स दिस ईयर, ये साल में आपने इंपोर्ट किया 101 बिलियन डॉलर्स। दिस इज चाइनीज अपीसमेंट, नॉट मुस्लिम अपीसमेंट। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे चार्ज है आप पर। ठाकुर साहब देखिए, कांग्रेस की बात को कौन मानेगा नामदार साहब? आप मुझे बताइए, अपीसमेंट भारतीय जनता पार्टी चाइना की करती है, और जब बॉर्डर पे टेंशन होता है तो चोरी छुपे मिलने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, एग्रीमेंट करके पैसा राहुल गांधी लेते हैं चाइना से, और अपीसमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है क्या चाइना के लोगों को कि आप लोग कांग्रेस को पैसा दीजिए, और एग्रीमेंट क्यों नहीं दिखाते ये कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी? और अगर ये इतने बड़े दुश्मन थे तो इन्होंने क्यों छुपाया पहले देश के सामने कि चाइनीज एनवॉय को नहीं मिले? और जब बात मीडिया के माध्यम से बाहर आ गई, तब इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मिले,
और क्या कांग्रेस ये स्वीकार करेगी क्या कि इस समय जो थ्रेट इस देश के स्कूलों को हो रहा है उसमें जो पाकिस्तानी और चाइनीज कनेक्शन सामने आ रहा है, तो इस समय देश में अस्थिरता फैलाने के लिए और देश के लोगों को डराने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी एक नया टूल किट लेके आई है क्या? कांग्रेस पार्टी खुद जो काम करती है उसी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे मढ़ देती है, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उजागर करने जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत कन्वीनियंटली ये कहते कि देखिए तो ऐसा है। पूरी तरह से कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस का इंटरनल एग्रीमेंट है चाइना से। कांग्रेस लगातार राजीव गांधी फाउंडेशन में और अलग अलग संस्थाओं में चीन से पैसे लेती है और उस पैसे को इस भारत में विध्वंसक गतिविधियों के लिए और टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, देशद्रोहियों को फाइनेंस करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा मेरा आरोप है। और अगर हिम्मत है तो कांग्रेस इसका जवाब दे और वो एग्रीमेंट जो इन्होंने चाइना के साथ किया है देश के सामने रखें। राहुल गांधी जी का कहना है कि यह संविधान पवित्र है, यह पवित्र संविधान है। उन्होंने संविधान को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बोले इस संविधान को मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा, बीजेपी को छीनने नहीं दूंगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को छीनने नहीं दूंगा। और बोले कि जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं इंडिया अलायंस के, आप संविधान लेके हर गांव, हर गली, हर शहर में जाइए अपने प्रचार में, इस पवित्र संविधान को लोगों के सामने रखो और बोलते जब तक राहुल गांधी है, जब तक कांग्रेस है, इसको हम छीनने नहीं देंगे, चेंज करने नहीं देंगे, संविधान नहीं बदलेगा। ठाकुर साहब, अगर संविधान की इतनी समझ है उनको, तो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का मजाक क्यों बना रहे हैं? अगर इतना ही संविधान समझ में आता है उनको, तो भारत देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन उनकी माता जी ने मिल के बैठ के एक देश में इस देश का संवैधानिक ऑर्डिनेंस जो लाया था, संविधान की उस प्रति को फाड़ के लोगों के सामने फेंक कर प्रधानमंत्री का मजाक बनाने वाले राहुल गांधी, क्या उनको आज संविधान का ज्ञान हो गया है? अभी अभी बोध हुआ हो तो बताएं कि अब तक मैं नहीं समझता था संविधान को, आज मुझे संविधान की पवित्रता के बारे में पता चला। ये झूठे लोग हर दिन रात झूठ बोलकर इस देश को गुमराह करने वाले लोग, इस देश की जनता, इनके जो छुपे हुए चेहरे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से। संजय ठाकुर साहब, जो आपने अभी चाइना के बारे में बात करी कि कांग्रेस पार्टी का कोई शायद गुप्त संबंध है चाइना के साथ, कांग्रेस ने आपसे भी कोई 10-15 सवाल पूछे हैं चाइना को लेकर के। उन्होंने ये कहा है कि 2011 में नितिन गडकरी साहब खुद गए थे चाइना, 2008 में राजनाथ सिंह जी, 2007-2008 में राजनाथ सिंह जी गए थे। उसके पहले बीजेपी के काफ़ी लेजिस्लेटर्स जो हैं, ऑन द इन्विटेशन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, काफ़ी देर तक आप लोग चाइना में रहे। And why did the Rashtriya Swayamsevak Sangh go to China in January 2009 on an invite from the Chinese Communist Party? Why was a delegation of RSS invited by the Chinese despite it not being a political party? Why did the then BJP President Shri Nitin Gadkari go to China on January 19th, 2011 at the invitation of the Chinese Communist Party? उसके अलावा काफ़ी बीजेपी के जो लोग हैं, मोदी जी के आने के पहले काफ़ी बार चाइना गए हैं और उनका ये कहना है कि आप ज़रा अपना भी डिटेल दे दीजिए, क्या डिस्कशन हुआ वहाँ पे। और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्कूल है, वहाँ पर एक स्टडी टूर पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी गए हैं। संजय ठाकुर साहब, ऐसा है बजाज साहब जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ चोरी छुपे तो कोई गया नहीं ना सर, इट्स ऑन रिकॉर्ड, सबके सामने। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना कि चोरी छुपे गए नहीं कोई जी, ना डिनाई किया। राहुल गांधी तो छुप के गए, मिले, डिनाई किए और जब पकड़े गए तब उन्होंने स्वीकार किया। क्या चाइना विश्व कम्युनिटी की राजनीतिक हिस्सेदार नहीं है क्या? क्या चीन विश्व कम्युनिटी में नहीं है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छुपाया नहीं जी। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाके बैठ के भारत की सरकार को अस्थिर करने का और नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करते थे क्या? तो संजय ठाकुर तो साहब, आपने किया है ना, आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप जी। दूसरे के बारे में उल-जलूल बातें तो करें। डॉक्टर सुब्रमण्यम जो हमने नहीं स्वामी, छुपाई है, हमको उसका डर नहीं है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि 4300 स्क्वायर किलोमीटर
जमीन जो है चाइना ने 2014 से लेकर के 2019 तक उन्होंने हत्या ली है भारत से, और जिस विषय के बारे में नरेंद्र मोदी जी, ना सरकार ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ बोलने को तैयार है। ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक बार नहीं बार 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 कहना है। बताएं सर। देखिए ऐसा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी वही हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कसमें खाते हुए थकते नहीं थे, अच्छी बातें करते थकते नहीं। करेक्ट, दुरुस्त। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कहते हैं, अगर उनकी सब बातों को देश मान ले तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो आज आरोप लगा रहे हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में हजारों बार उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। मैं तो देश से ये कहूंगा कि पहले वही आरोप उनका मान ले। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, उनका कब क्या मन करे, कब क्या बोलने लगे, कब किससे प्रभावित हो जाए, तो उनके बारे में, उनके विषय में लेकिन उनका गुस्सा तो वाजिब है ना सर। सर उनका गुस्सा जायज है ना। मैं उनको सीरियसली लेता हूँ सर। आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया नहीं, इसके बावजूद कि उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूं और हार्वर्ड में मैंने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स। कोई यहां पे कोई है ही नहीं जितना इकोनॉमी के बारे में मेरे जितना जो जानता हो। तो गलती तो आपकी है ना सर। आपने बेचारों को इग्नोर किया इतने साल। ऐसा है ना कि उनकी इकोनॉमी की जानकारी बहुत ज्यादा हो सकती है, संभवतः मनमोहन सिंह जी और रघुराम राजन से भी ज्यादा ही हो। सर उन्होंने कहा है कि वो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा तो मैं तो पर्सनल इनकम टैक्स अबॉलिश कर दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, वो तो कुछ भी बोल सकते। मैंने कहा ना आपसे कि उनके बोलने पे तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। वो बहुत विद्वान आदमी है, इतने विद्वान आदमी मेरे जैसा अदना सा शरद पवार। लेकिन वो तो कहते हैं, एक सेकंड प्रदीप जी, लेकिन जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का सवाल है, वो तो खुद बोलते हैं मेरे जितना विद्वान कोई है ही नहीं, बोलते हैं सर। हाँ, तो जो आत्मस्तुति करता हो कितना बड़ा विद्वान होता है तो आप जानते नहीं हो जाता। शरद पवार साहब, मैं क्या कहूँ, जो खुद ही पीट पीट के छाती कह रहा है कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान। शरद पवार जी ने तो मैनिफेस्टो, भाई ऐसा हो सकता है। शरद पवार जी का मैनिफेस्टो में हर चीज एलपीजी 500 रुपया, फार्मर्स डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए पेट्रोल डीजल एक आर्बिट्ररी मैकेनिज्म, रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि सीएए, यूएपीए, एनआरसी, इस पर वो विचार करेंगे, उस पर लॉस लेके आएंगे, इसको कैसे कंट्रोल करें। और ये करते करते उन्होंने दोनों फडणवीस साहब पे आरोप लगा दिया और मोदी जी पर अब करेक्ट पुतिन के साथ कंपेयर करके डिक्टेटरशिप कि 2024 में अगर हम मोदी साहब फिर आ गए तो वही होगा जो रशिया में पुतिन कर रहा है। वी आर इन फॉर डिक्टेटरशिप, सो द पीपल शुड चेंज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठाकुर साहब, देखिए ऐसा है कि शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, लेकिन मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अपना देश, अपना घर एकजुट में रख सके, अपनी इकलौती बेटी और अपने भतीजों को एक साथ में रख सके, वो अगर देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करे और बताए कि मैं देश बहुत अच्छा कर दूंगा, तो उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा। उनसे कहिए कि अपना आत्मावलोकन करें और धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों को जो बंद कर रखा है उसको खोलें, आत्मचिंतन करें और पहले अपने घर में न्याय करें, हिंदुस्तान के साथ न्याय बाद में करेंगे तो ठीक। सर आपने सिर्फ 4 सीटें दी हैं और उन्होंने कहा फडणवीस जी को उन्होंने एक सुझाव दिया है कि फोडायला अक्कल लागत नाही, फोडायला अक्कल लागत नाही, जोडायला अक्कल लागते, यानी आलोचना भी की जोड़ने के लिए, जोडायला अक्कल लागते, फडणवीस जी को बोला उन्होंने। फोडणे में कोई म्हणजे स्वतःला होऊन म्हणजे स्वतःला होऊन सांगतात की मी बिनअक्कलचा माणूस आहे। आप स्वतःचं घर का नाही जोडले तेच विचारतोय मी। तुम्हाला खूप अक्कल आहे, तुम्ही मोठे अक्कलवंत आहात, फडणवीसांकडे अक्कल नाही, मग तुम्ही का नाही जोडलं तुमच्या घराला? जोडायला अक्कल लागतं आणि तुम्ही नाही जोडू शकला म्हणजे तुम्ही पण बेअक्कल, हेच सांगतायत का पवार साहेब? ये आपका इंटरप्रिटेशन, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। जोडायला अक्कल लागत नाही, आम्ही फोडायला अक्कल लागत नाही, जोडायला अक्कल लागत नाही आणि तुम्ही जोडू शकला नाही म्हणजे तुमच्याकडे सुद्धा अक्कल नाहीच ना। अक्कल असते तर तुम्ही जोडून ठेवले असते। अच्छा सर, जो फर्स्ट फेज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सुनने में ये आ रहा है, सुनने में क्या, मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ से, जो यूजुअली एंटी बीजेपी चैनल जितने भी हैं यूट्यूब के ऊपर,
सब लोग यही बोल रहे हैं कि शायद हमारे जो परम मित्र हैं, आप जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप ये भी जानते हैं कि मेरे परम मित्र हैं वो नितिन गडकरी जी, ये कहा जा रहा है कि उनकी सीट शायद थोड़ी फंसी हुई है। ऐसी कोई खबर है आपके पास? हमारे पास तो नहीं है। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वो नागपुर में जो मैंने खुद बात करी है वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा कि बड़े आराम से निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कुछ फंसी है क्या? नहीं, कोई फंसी नहीं। मैं तो आपको बताया था कि मैं विदर्भ रीजन में था, मैं अमरावती में रहते हुए आपका डिबेट किया था। ये सारी कोरी अफवाह है। इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करके एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है, ताकि अगर ये बात सही बैठ जाए तो लोगों में ये भावना जाए कि भाई जब इतने दिग्गज मंत्रियों की हालत है तो बीजेपी की स्थिति खराब होगी। ये नैरेटिव सेट करने की साजिश की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भारी बहुमत के साथ नितिन गडकरी जी चुनाव जीते। जी, सुनने में तो यही आया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी की जरा हालत जो है जरा खस्ता हो गई, इसकी वजह से आप अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम वापस कर रहे हैं कि भाई मैं किसी भी हालत में दलित और ओबीसी का जो का रिजर्वेशन है वो हम मुसलमानों को नहीं देने देंगे। लेकिन वो रिजर्वेशन जो कर्नाटका में दिया गया था सर, वो तो आपकी साथी पार्टी है ना, देवेगौड़ा जी, उन्होंने दिया था। वो तो ही इज विद यू। नहीं, ऐसा है बजाज साहब जी कि हमारा स्टैंड है। हमने तब भी इसका विरोध किया था, हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। सर, विरोध करने से क्या होता है? 5 साल आपकी सरकार रही, कमिटमेंट किया। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि धर्म ठाकुर के आधार पर हमारे किसी भी ओबीसी दलित भाइयों का हक छीन के आरक्षण नहीं दिया देने जाएगा। आगे कर्नाटक का सर बात को घुमाइए नहीं ठाकुर साहब सीधी बात बोलिए ना कि आपकी सरकार थी 5 साल के लिए, आप कैंसिल कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? आपकी तो सरकार चली है ना सर, 2023 तक आपकी सरकार थी, तो आप कैंसिल कर देते, क्यों नहीं किया आपने? आप तो थे पावर में कर्नाटक में। नहीं करेंगे ना, हर चीज का एक सही वक्त होता है। वो 5 साल में टाइम नहीं मिला। बजाज साहब, जिसको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको झूठ बोलकर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जब तक उनको समझे ही ना कि उनके साथ क्या घात हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बिना आग्रह के अनुग्रह संजय ठाकुर साहब के अनुग्रह करेंगे तो नहीं होता है ना सर। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय आपके सामने रख रहा हूं। क्या हुआ है कि बार बार जान करके आपको प्रोवोक किया गया, वेरी फ्रैंकली, मुसलमानों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के आपको जान के प्रोवोक किया गया, जिसकी वजह से ये जवाब सामने से आया बीजेपी की तरफ से। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सुधार करें, प्लीज बताइए। नहीं बजाज साहब, देखिए ये बातें करते हुए हम लोग ये ना भूलें कि कश्मीर में हमने महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई। एक लिमिट तक हमने महबूबा मुफ्ती की भी हर बातें मानी, लेकिन उसके पीछे हमारा कार्यक्रम चल रहा था और हमारा टाइम हुआ, हमने कार्यक्रम कर दिया 370-35 से। तो कोई कहे कि आप तो महबूबा मुफ्ती के साथ थे, तो हम थे ना, हम जानते थे कि हम थे, और हम क्यों थे हम ये भी जानते थे। सर हर एक कोई जानता है, जिसमें अकल है वो हर एक कोई जानता है। अब जिसको जो इंटरप्रिटेशन करनी हो करता रहे, सीधी बात है। तो आगे भी जहां इस तरह की स्थितियां दिख रही आप लोगों को, वो अभी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये बाद में समझ में आएगा कि ये क्या है। हम करेंगे और ये बात सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। आपने एक आंकड़ा दिया अभी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो सीरियसली बोला कि वैसे ही बोला? आपने कहा कि इस बार कांग्रेस जो है वो 44 का भी आंकड़ा पार नहीं करेगी, आपने ऐसा कहा? हाँ, नहीं करेंगे, किसी तरह से 44-45 बचा ले, यही बड़ी बात होगी। और छीनने की बात क्या करते हैं? 150 छीनेंगे आपसे, 150 सीट राहुल गांधी जी। 303 में से देश भर में 200 सीट लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, 150 छीन लेंगे। वाह भाई वाह, कितने बढ़िया नेता है राहुल गांधी। मैं तो कहता हूं ना कि ईश्वर करे कि राहुल गांधी सदैव कांग्रेस पार्टी के नेता बने रहें, हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो आपके मुताबिक 40 पार, 45 पार या 35 पार कांग्रेस? नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि चूंकि एक नया गठबंधन, नया प्रयोग किया है इन लोगों ने इस बार, वो जानते थे कि 35 पार भी नहीं होंगे, इसलिए इतने मजबूरी के गठबंधन किए ताकि कम से कम पुराने आंकड़े पे सस्टेन हो सके। तो होंगे क्या? ठीक है, उनको पुराना आंकड़ा मैं दे देता हूं
लेकिन जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बातें कर रहे हैं बजाज साहब, जी। पहला फेज भी भाजपा का था और दूसरा फेज 90% भाजपा का है। ये कोई बताए इन लोगों को। सर चलते चलते आखिरी सवाल, सर अमेठी में आपके मुताबिक कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ रहा है सर? मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? मेरे पास तो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। हम तो यही वेरी राहुल फ्रैंकली गांधी- उम्मीद राहुल उम्मीद लगाए गांधी बैठे थे कि जाके राहुल लड़ेंगे गांधी जी आएंगे। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि राहुल गांधी आएंगे, नहीं आ रहे। अरे भाई बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर कल जाके वो पर्चा भर दें तो आप आश्चर्य मत करिएगा। सर भरना चाहिए, मजा आएगा सर, नहीं तो मजा नहीं आ रहा अभी इलेक्शन। सर इलेक्शन में मजा नहीं, हिम्मत कलर नहीं हो आ तो रहा। भरे, अपनी परंपरागत सीट से भाग गए हैं, अगर हिम्मत हो तो भरे जाके। सर बोरिंग लग रहा है, अभी तो खुद पक्का चुनौती दे रहे है। हैं हम लोग कि जाएं लड़ लें एक बार और। सर राहुल गांधी के बिना या प्रियंका गांधी के बिना दोनों में से एक कोई ना कोई गांधी तो होना चाहिए ना अमेठी से, कि वो मतलब अभी तो स्मृति ईरानी जी के लिए तो वॉक ओवर है। मतलब ये को मजा थोड़ी आया सर। भाई माता जी लड़ लें, बहन जी लड़ लें, खुद लड़ लें, और ना हो सके तो जीजा जी को ही लड़ा दें, या वरुण कोई गांधी तो को, आए। वरुण गांधी को। ये तो बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है इन लोगों का इस तरह का प्रयास। ये तो ये यूट्यूबियों की खबर है बजाज साहब, ये जो नैरेटिव सेट करने वाले इनके नए नए यूट्यूबिये हैं, उन्हीं लोगों की न्यूज है। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ सही रहे हैं? मायने में आप राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो से डरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता। हाँ, राहुल गांधी जी का खुद का इतना डरे हुए हैं कि उनको 40 सीट भी नहीं दे रहे हैं। करेक्ट, उनके काम रहे हैं, देख मैनिफेस्टो लीजिए। से इतना डरे हुए हैं हम लोग कि 40 सीट भी नहीं दे पा रहे हैं उनको। हाँ कमाल है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बीजेपी